Assalamu alaikum, Rida. Thank you so much for joining the session. Hello, Mer. Thank you so much for having me. I'm pretty much sure a lot of people know you, who you are, what you do over on LinkedIn. But just for the audience, can you tell me and can tell the audience who is Rida, what she's doing right now, how's life, how's everything? So then we can continue the conversation. Sure. Omer, as you know that my name is Rata Zahid. I am currently pursuing my master's in international management in Germany. After spending good 6 years in the corporate world, I started, I thought of let's just move back to academia and just explore the education sector and education world, but into a different country altogether. So I recently moved to Germany after spending good 6 years in Pakistan. Especially especially in the corporate sector, I would say. I graduated in 2019. I did my bachelor's in business administration, and then moving forward, I joined the corporate world. My first job was in MAMQ, was a supply chain corporation where I worked as a executive supply chain, where I was looking after the transport management and everything. Later on, I moved to Ten Pearls as an executive assistant to managing director. That's where my real journey starts. Um I started a role in the administration of the business excellence and everything. After that, I felt like there was an urge in me to start off with the L&D sector and to explore the L&D part, because I was one thing that I knew about myself, that I was very good at communications. I was very much interested in the HR domain and specifically in the learning and development. So I went one fine day after spending a year in the executive assistant position. I went to my HR and I told them, "Hey, let's just move me towards the L&D function of the company, because I believe that I could do that better." So after that, I started off as an executive assistant, learning and resource mobilization, where I was responsible for the entire learning and the employee experience component of training and development in Tempers. After that, I moved towards a senior executive position. And now, while finally, when I was leaving Pakistan, I was a lead learning and OD in the at the TPS worldwide. So, as you all know, that these are, these like Temporals, TPS, these are good big names in the software houses. So, accumulatively, I have more experience towards these software houses, specifically in the learning and development arena, I would say. Perfect. That's given that's give me the first topic that I'm gonna discuss is usually what we see in Pakistan. We are seeing that people usually try to do their master after their graduation. जैसे ही वो graduation कर लेते हैं, they try to move over there. ठीक है. What I personally believe, the dynamics change when you done from your bachelor's and डायरेक्टली डूइंग योर मास्टर्स बिकॉज यू हैव लाइक अ माइंडसेट कि ठीक है यार हमें अभी अभी हम पढ़ ही रहे थे वी नो हाउ टू डू इट वी नो हाउ टू डू एवरीथिंग क्योंकि पता है वो आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप अलाइन हुए वो तो ठीक है एंड देन देयर इज समवन a girl named Rida who's doing very well in the industry and then she decided after like good 4 5 years कि चलो ठीक है now let's stop something and let's move towards another domain like फिर से पढ़ते हैं फिर से चीज़ों को देख रहे होते हैं ठीक है so before we discuss how's life in Germany tell me about like what are the key elements that you thought कि यार ठीक है fine you are doing good as you told me कि आप आराम से अपने overall career को drive कर रहे थे you were in a better position why you think कि at a point आपने ये सोचा कि नहीं now I need to go for my masters not only in Germany but why to do masters because a lot of people have a thought process या अगर मैं भी कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठीक है बैचलर्स कर लिया है सब कुछ सही चल रहा है जॉब भी अच्छी चल रही है वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी वी आर ग्रोइंग व्हाई टू हैव अ थिंग कि यार हमें मास्टर्स करना है Hmm. Asha, Omer, to answer you this, I always wanted to pursue my master's. Hmm. It's just that I was so keen to go into corporate after my bachelor's that I couldn't had the chance to, pursue my master at that time. But that was one of the desires that was, parked somewhere, that I want to pursue it, but maybe later whenever the time is right. And also the fact that I knew
for a fact that I want to pursue my master's outside Pakistan because I wanted to have an international exposure as well attached to my resume as well as to my personal experiences. So I did my bachelor's. I went to the corporate world. I was excelling there. I was thriving to the fact it hit me. After 6 years, I was like, listen, if I'm going to give this much time to the corporate and to my professional experience, I would never get the chance to go back to academia, right? Although I was constantly learning, I was doing my certifications, I was attending workshops, I was doing sessions, I was doing everything. But as to add on to a professional degree, that was missing. That was, the park desire were always there, but it did not, maybe the time was not right. So after 6 years, it hit me to the fact, let's just go back. You need to explore. There's still a lot of happening in academia that you don't know. I've been part of the HR sector for like 6 years. I knew that, I know everything about HR. Let's just not explore HR anymore because, I've done my certifications into HR, specifically learning and development. I've explored that enough. Let's just move towards another degree that somehow relates to my own experiences, but let's just explore the management side of it. So once I started searching about, where to pursue my masters, when to do it, what countries are feasible for me to go. I came across this degree that is called international management, and I was like, this is interesting. Let's just search about it. Let's just search about the courses. Let's explore the courses that are being offered into this program. And it occurred to me that it was very much interesting to know about the managerial side, which was, again, it was very important for me to understand the manager part of the corporate as well, because it's been 6 years, I was moving towards a manager position later on life, or when as I was progressing through, I know that I have to move towards the manager position too. So I was like, let's just study this, let's just explore this a bit, and in the context of foreign education. So I searched about my program. Did my research. I did find out the courses that were being offered in this program. So I was like, let's just give it a try. And then it happened. I अ, सही है आपकी अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ इट्स नॉट समथिंग दैट यू प्लान इन अ सेकंड यू हैव अ पाइपलाइन फॉर दैट कि ठीक है यार वी नीड टू डू दैट बट लेट्स टेक कि व्हेन इट्स द राइट टाइम टू डू इट एंड you what I personally believe that there are like two type of people who are like just focusing on कि ठीक है मैं बाहर जाना है कुछ भी करके they are not doing anything they are just focusing on that thing and what I personally believe बाहर जाना है यार ठीक है it's a good initiate to grow to get graduation or maybe masters or good jobs everyone has the right to do that but people usually what I personally believe they think कि नहीं let's only focus on this what I personally believe जैसे आपने करा you are doing it with your job you know यार how the market works because for example being as a Pakistan resident you know कि यार visas का कुछ नहीं पता कभी भी कोई चीज हो सकती है ठीक है so what if someday I plan कि ठीक है यार मैं job छोड़ती हूँ and I'm focused on my visa thing get it sorted and after 6 4 5 6 months you get an idea oh shit now the visas are blocked then I get back to the thing and it's a very mess ठीक है before we move in towards uh the experience part 5 6 साल की बात करें I see Rida Zahid started her career as a teacher a BBA Okay. student, what I personally wanted to know because usually people think that no, we have done my graduation in this. I only gonna work for this thing. Okay. This is the different mindset. Okay. This is a very different. I'm pretty much sure there is a very good story behind it. Why did you start teaching? Okay. Because what I see is people usually do that during like before their graduation, like inter में करवा रहे होते हैं या before like in the middle of जब graduation भी नहीं हुई होती है और आप इंटर कर लेते हो तो ठीक है for a longer period of time you start going teaching. A BBA student graduated, why she start teaching in school? Why she don't want to start their career from something big company या किसी कहीं और से? All right.
I know, Umair, I believe it's similar because I wanted to get into the teaching line as well. I wanted to understand where does our education arena stands in Pakistan and everything. Also that I got a chance. I was lucky enough to interact with the young students and young minds. Um, I started teaching very early. It was way before my graduation, and then I continued it within my graduation too. One thing that I would like to mention that was skipped is that I joined a training enterprise that was named by Leadership Club Pakistan. So this company or this enterprise, what it does is like they connect students with the um, like the college students with the university students and then trainers across Pakistan to interact with these young minds. And that's how I ended up interacting with people. I That's how I understand, what is the dynamic or what is the cognitive the process of young people or people who are like, abhi mujhse chote hain, and then what are they thinking. So that's how I got the chance of interacting with them. If you talk about the learning and teaching experience, it was not sort of very expended over time, or it was not sort of that I would say, मैंने इतने साल पढ़ाया है या कुछ. Yes, I did that, but it was more part of knowing people. I got an opportunity, I went into it. um इसका जो अगर if you talk about the intentions of getting into the teaching world is just to know people. People who are younger than me, people who are coming towards university or will be going towards university soon. The only entirely, the intention was this, to interact with such people and to understand their mindset. And soon after my smart, I joined Leadership Club Pakistan. That was yet another platform for me to, interact with these young people and young mind. Totally agree with the point. The main reason of asking this is because यूजुअली पीपल सेट सम बाउंड्रीज जो उनको फिर बाद में मसला करती है, ठीक है? व्हाट आई एम सीइंग इज यू डोंट हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज कि नहीं, दिस इज व्हाट आई डू and I'm only gonna do this, because life is not like that. To be very honest, what I personally believe that sometimes you plan, sometimes your plan works, but sometimes if not, what you gonna do? Okay, and I'm seeing that you are what I see in your overall career, you are not something कि यार नहीं, जब मेरे साथ की अपॉर्च्युनिटी आएगी तब करोगी, ठीक है? यू गो टू द अपॉर्च्युनिटी, यू एज द अपॉर्च्युनिटी एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज़ नेवरदलेस इफ यू हैव एनी वर्क एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग, आज नहीं कल वो आपके काम ज़रूर आएगा, ठीक है? दैट्स द मेन रीज़न ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल हैज़ दिस माइंडसेट कि नहीं, अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग पढ़ी है। सर तो कोई मसला नहीं है अगर आपने इंजीनियरिंग करी और अगर आपको थोड़े टाइम के लिए कोई जॉब मिल रही है, एक्सप्लोर दैट थिंग इन अ पॉजिटिव वे एंड मे बी सम अदर डे और आफ्टर few years it will come back to you in a very different way. So that's it. Exactly. Now, let's discuss few things about the overall experience you have in Pakistan. ठीक है? So they're like वेरी प्रिविलेज पीपल, लाइक जो अच्छी कंपनीज में काम करते हैं। आई वांट भी अच्छी कंपनी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो इंसेंटिव ज़्यादा दे रही है, जो आपको सैलरी ज़्यादा दे रही है। इट्स अबाउट द ओवरऑल लाइफस्टाइल दैट यू गोना पिक, ठीक है? सम पीपल यूजुअली रियली वांट टू अर्न मनी, दे डोंट वांट टू सी देमसेल्फ कि यार हम एमएनसीज में काम करें या हम अच्छी आईटी कंपनीज में काम करें, ठीक है? और अगर मैं आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो शायद हर गली में दो तो होंगी कराची में, ठीक है? This is what we see after this corona thing, ठीक है? Before that we do understand कि ठीक है, we do have market, but कोरोना के बाद हुआ ये कि हर बंदे ने अपनी आईटी कंपनी बनाना शुरू कर दी, ठीक है? और पीपल यूजुअली ट्राई टू बी लाइक कि पैसे कमाना इज इम्पोर्टेंट rather than growth. What Mm. I see in your overall experience, you prefer growth over money, ठीक है? I'm not saying कि money is not important, ठीक है? But when you're working big companies like 10 Pearls or PPS, world companies like that, you understand कि structure क्या होता है. You understand what is the overall dynamics, what is the overall hierarchy. Because it's not something like you just going to a small agency and working like आप जाओ कुछ भी पहन के चलाओ. You need to understand कि आप जिससे मिल रहे हो, जो बात कर रहे हो, Exactly. and this is the overall experience. It's not about what I personally believe. Your job is like 10% what
you know how to do it, and 90% is the things how you gonna do it. ठीक है? आप मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, ठीक है? अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट ये है कि आप ट्रेनिंग सेशंस रखो, तो ये तो कोर जॉब है। बट यू नीड Yes. टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार वो जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, उससे लोगों की ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं किस तरीके से बात करूँगी, लोग मुझे किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है? क्योंकि व्हाट आई सी इज़ पीपल नाउअडेज़ यूजुअली डोंट सी देयर करियर इन कंपनीज़ लाइक कि मैं 4-4, 5-5 साल तक काम करूँगी। दे आर लाइक कि ठीक है, हम 1 डेढ़ साल काम करेंगे, जैसे हमें कोई और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आई वाज़ अमेज़्ड टू नो कि पीपल हैव अ माइंडसेट इन पाकिस्तान कि यार देखेंगे अप्रेज़ल कितना होता है। मैंने कहा Mm. हाउ यू गोना रिलेट इट? ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है 1 साल कंपनी ने अच्छा ग्रो नहीं करा, 1 साल आपने अच्छा काम नहीं करा, तो यू गोना चेंज योर जॉब, ठीक है? बट व्हाट इफ द अदर कंपनी डोंट फिट इन अ राइट वे और यू गेट मच मोर फक्ड अप देन द बिफोर, तो आपको वापस आना पड़ेगा। सो That. दैट कम्स टू इट कि यार मुझे ये थोड़ा बताओ कि व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, Mm. व्हाट आर योर गोल्स? हाउ यू बेसिकली मूव टुवर्ड्स फ्रॉम लाइक मैं स्टार्ट करूँगी मृदा के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द की स्टेप दैट यू टुक कि यार मैं ये फेजेस देखती हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ। जैसे आपको पता होता है कि ठीक है, आई वांटेड टू वर्क इन अ बिग एमएनसी, दैट्स द बिगेस्ट गोल, ठीक है? एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि आपके पास जो है मैनिफेस्टेशन पावर होनी चाहिए। यू शुड That. मैनिफेस्ट, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट टिल द डेट अगर मैं बात करूँ, हम दोनों ने एक टाइम पे कभी ना कभी मैनिफेस्ट करा होगा, तभी आप जर्मनी में और मैं यूएई में हूँ, ठीक है? Amazing. और हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाए, कभी-कभार वो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें होती हैं कि ठीक है यार मुझे इस कंपनी में काम करना है। कभी-कभार होता है कि यार नहीं मुझे वहाँ जाना है या मुझे ये चीज़ ट्रैवल करनी है, ठीक है? सो हाउ डू यू सी योर ओवरऑल करियर, ठीक है? आर यू समवन कि ठीक है यार जस्ट लेट्स गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होता है। यू आर समवन लाइक कि नहीं लेट्स प्लान इट, लेट्स सी No. हाउ मच आई कैन कंट्रोल। Yes. So, Mayor, answering to your question, I was always somebody who always had to have plans. So there was always a plan A and there was always a plan B. If plan A doesn't work, then obviously the plan B would definitely work out for me. I planned out stuff. Even landing up Germany was not easy. It was not something that I decided one good day I woke up and I wanted to go Germany, and I was the other day, the next day I got my visa and it was all done. No, it was never like that. It was never the case. Um, Talking about the fact that how do I see my career and how do I see my progress. Um, as I told you that I always had plans. I manifested things. I knew exactly what do I want for myself. Sometimes आपको कुछ चाहिए होता है, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि आपको वो चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक एंजाइटी पैदा करती है या एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि मे बी आई एम नॉट एट द राइट प्लेस. So I always had that curiosity within me while I graduated. I want to explore. I want to be in the corporate world. I want to do this. I want to do that. And that curiosity led my one step, that curiosity led my one step to another. So yeah, and I believe कि अगर आप मेरे करियर के बारे में पूछें तो I was always very picky about which company do I want to go, the names that are going to be associated with me for the rest of my life, because I know that 10 pearls, talking about Leadership Club Pakistan, either talking about DigiTrends that I did during my bachelor's, or you talk about the companies that were associated with me after my graduation, like 10 pearls or TPS. These are big names. So I knew exactly from day one when I graduated that, these names are going to be associated with my life or with my professional career for the rest of my life. So I need to be very, very selective of where I'm going or where am I heading to. So that was one thing that was very clear in me. I was very selective about the names that I will be, using in my resume, and moving ahead in the corporate ladder. So that was one thing. I was selective. I knew exactly what I wanted. I had the curiosity to move on and to grow. I started off as an executive position, and while when I left Pakistan, I was in lead learning, and I was already moving towards a managerial post. But at that too, I felt like let's just give it a break.
go back to academia, learn more about it, and then come back. Maybe not come back, but like not going Thank you back so much. because Thank you so much for saying this. Not come back, and yeah, because yeah, not coming back is so what I personally believe, and then a thing that I wanted to say as well, कि you were I'm pretty much sure you were privileged enough to have mentors and to have people in your life that give you an overall idea कि यार आपके पास कोई रोड मैप होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं भी है तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप फिर बहुत उन कम लोगों में हो जिनको ये पता होता है कि मुझे रोड मैप रखना है, that. ठीक है? जैसा अभी आपने बताया ना, इट्स नॉट लाइक कि इट्स नॉट लाइक कि ईज़ी जॉब मैंने आज सोचा मैं कल जर्मनी में थी, ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैनेजरल लेवल पर आई एम प्रीटी मच श्योर 99% लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते। वो Yeah. कहते हैं जो सही चल रहा है, ठीक है, आई एम अर्निंग गुड। आई एम प्रीटी मच श्योर कि पाकिस्तान में मैनेजरिंग लेवल की पोज़ीशन पे आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 5K 500K पे टच कर रही होती है, ठीक है? बेशक आपके टैक्स वगैरह कटें, आपको पता होता है कि यार आप अपनी ज़िंदगी बहुत सूटेबल गुज़ार रहे हो तो। देन इट कम्स टू द पॉइंट कि आपको ये भी देखना होता है कि आर यू अ फैमिली पर्सन और नॉट? डू यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नॉट? ठीक है? आर यू द सिंगल ब्रेड रनर ऑफ योर फैमिली और नॉट? सही है? सो दीज़ आर द थिंग्स बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट द नेक्स्ट फेज़ जो हम बात करेंगे, द ओवरऑल लाइफ़स्टाइल इन जर्मनी, आप 360 शिफ्ट करते हो। Yes. पाकिस्तान में व्हाट आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को बहुत लाड से रखा जाता है, बट दिस इज हाउ व्हाट आवर रिलीजन इज ऑल अबाउट ना, वी डू रिस्पेक्ट लेडीज, वी टेंड लाइक, आई थिंक 80% ऑफ द लेडीज टेंड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन और अ बैकअप लाइक फादर, ब्रदर, हस्बैंड। पता होता है कि भाई अगर मैं कुछ चीज ऊपर नीचे करूंगी तो ये संभालेगा, मुझे कोई चीज चाहिए, Yeah. मुझे कोई चीज चाहिए, मैं कॉल करूंगी। द रोड मैप इज टोटली डिफरेंट from a girl's point of view and from a boy's point of view. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस कि जब आप मैनेजरियल पोज़ीशन पे जाके अपने डिसीज़न लेते हो ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? फिर आप लड़की हो या लड़के हो। क्योंकि जब आपको पता होता है, मुझे पता है कि मैं 30 दिन काम करूँगी, अच्छे खासे पैसे आएँगे, मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे काम भी करना पड़ेगा, मुझे खाना पकाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे बाहर जाके पढ़ना भी है। नाउ यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो कंटिन्यू लाइक व्हेन यू आर एट दैट पॉइंट। Okay. So, Omer, as you said that, maybe I could have been the privileged one, but I'm not the privileged one. I did not have any mentors. I for advices, for the corporate advices or for the professional advices, I knew the people that I can go and discuss stuff, but I cannot call as of yet or stand, sitting in front of you in this session. I cannot say that I found any mentors who can eventually guide me कि "रिदा ऐसे कर लो तो बेटा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कर लो." आपको खुद डिसीजंस लेने होते हैं, आपको खुद स्मार्ट होना पड़ता है। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कॉर्पोरेट में तो एटलीस्ट नहीं चल सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ द लर्निंग्स दैट दीज़ आर वन ऑफ द टेकअवेज़ दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ कि यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड स्मार्ट फॉर योर ओन सेल्फ। रही बात प्रिविलेजेस की, कि घर में आपके पास कोई होता है पीछे कि कोई देख सके। When I came to Germany, I was the only breadwinner in the house. Okay, so to be like very specific and very clear about it, I was the only breadwinner in the house. But I took the leap of the faith, and I was like, just let's just give it a try. You know, I know I have the experience. I know I have the right education. I know that I have the current skills that are required within the job market in Germany. So I was very, I planned all of this. And meanwhile, being the only breadwinner was not an easy decision. I had a lot of responsibilities back then in Pakistan, and still do I have the responsibilities with me. But I took the leap of the faith, and I was like, let's just give it a try because this was an opportunity coming to me. Because I applied for my master's. I got the admission. I got everything sorted by Allah's will, Alhamdulillah. And things eventually worked out for me. So Okay. when things were So the main reason of saying this is just for the audience. People usually think यार ये लड़की है इसके लिए आसान होगा, हाँ, ठीक है? This for this point I was pointing on that. To be very honest, it's not that you always have a mentor, ठीक है? yeah,
टू बी वेरी श्योर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, आपके पास नहीं है तो यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, नंबर वन। नंबर सेकंड, इससे एक और चीज़ होती है, लोगों को ऐसा लगता है आपने यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी पढ़ी है तो शायद आप इससे तरक्की कर रहे हो। यू आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी दैट आई एम राइट नाउ, ठीक है, हम दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी और हमें पता है, और हमें ये भी पता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या मार्केट में किस तरीके से, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, इट्स नॉट अबाउट योर यूनिवर्सिटी, it's not about your mentors, it's not about it and as a matter of fact, ठीक है, if you can take a step as a, when I moved to UAE, ठीक है, I was very much कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ शायद, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, मजे आ रहे हैं पाकिस्तान में। आई एम वर्किंग इन द वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज ई कॉमर्स कंपनी इन पाकिस्तान, मैं दराज में था। आई हैव हायर्ड अ बॉल इन दैट कंपनी, ठीक है, मुझे मजा आ रहा था, मैं जो चीज करता था, यू हैव अ बिल बोर्ड गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, लोगों को पता होता था दिस इज समथिंग, दिस कमर्शियल दैट आई एम डूइंग। एंड व्हेन यू मूव टू अनदर कंट्री, ठीक है, दिस पॉइंट इज ओनली फॉर दोज पीपल हु थिंक यार वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी कांट डू इट। Always you can do it until or unless you don't have a plan, ठीक है। If you have a plan, ठीक है, to be इसमें अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, एक और चीज़ ये होती है, people usually think let's become selfish for a while, ठीक है, but when you are a bread you are a, when you are a breadwinner of your for your family, you need to understand कि I need to have a buffer period, ठीक है, when I'm coming out there, ठीक है, आई नीड टू हैव अ बफर पीरियड, बिकॉज अगर आपके दिमाग में आप ये सोचते हैं कि आप एक अलग मुल्क में बैठ के अपनी पढ़ाई और अपने काम को और घर की टेंशनों को साथ लेके चल सकते हैं, यू कैन डू दैट, You can't do that. Yes, ठीक है। definitely. व्हेन आई वाज मूविंग हियर, तो मुझे ये बात पता थी आई नीड टू फिक्स माय फाइनेंसेस इन पाकिस्तान, बिकॉज व्हेन आई मूव हियर आई नीड एट लीस्ट 3-4 months just to settle around कि हाउ दिस डायनामिक ऑफ दिस यूएई, और मे बी अगर मैं किसी और मुल्क जाता तो मुझे पता होता कि यार डायनामिक्स चलते कैसे, ठीक है। आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट कि यार वो कैसे गया है, ठीक है, कैसे गया, देयर आर phases, सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू थिंक टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, यू नीड टू सेट योर फाइनेंसेस, Mm. ठीक है, आपके फाइनेंसेस सही होंगे, आपका दिमाग 100% चलेगा और आप सही फैसले लेंगे, ठीक है। Exactly. इफ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, ठीक है, तो आप पाकिस्तान में, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बड़ी बिल्डिंग्स हो, अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा मेट्रो स्टेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। I agree. ठीक है, I उसके बाद आपका प्लान स्ट्रेटेजी आता है कि ठीक है, अगर मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास ये चेक पॉइंट्स और ये सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ तो ये चेक पॉइंट है, सारे क्लियर होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो आपके पास चेक पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप वहाँ पैसे देते हो और पढ़ते भी exactly. हो, ठीक है, और आपको उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। अगर मैं बात करूँ अभी हम दोनों की, ठीक है, तो एट द सेम पॉइंट वी बोथ आर फ्रॉम समवेयर लाइक सेम सेम एजेस, ठीक है। मैं जिस मुल्क में हूँ, वहाँ काम करने के मुझे पैसे मिलते हैं, तो ये एक प्लस Well, पॉइंट है, ठीक है। आप जिस मुल्क में हो, वहाँ पे आपको पढ़ने के पैसे देने पड़ते हैं, yeah. ठीक है। तो आपको टाइम देखना पड़ता है कि हर बंदे की लाइफ बहुत स्ट्रेट नहीं होती है, हर दोनों की Mm. चीज़ें सही हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रुझान है, या हमारे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यार आप एक मर्तबा बाहर चले जाओ, लाइफ सेटल है। मैं कहता हूँ बाहर जाना तो आपका वो शायद पहला स्टेप होता है। Yeah. दैट्स द सेम विद दैट वी हैव ना, हम अपने माँ-बाप से सुनते थे बेटा 9 मैट्रिक कर लो लाइफ सेट है। 9 मैट्रिक हो जाती है, फिर आप कहते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लो लाइफ सेट है। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लो तो। फिर आप यूनिवर्सिटी में आते हो, आप कहते हो यूनिवर्सिटी कर लो लाइफ सेट है। ठीक है, फिर आप जॉब में आते हो, आप बोलते हो किसने बोला था कि मैं लाइफ सेट है, क्योंकि नथिंग इज़ प्लान्ड ना, ज़रूरी नहीं है। आप हर चीज़ देख रहे हो तो अलग-अलग टाइम फ्रेम्स में। आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर मैं आपको सेम माइंडसेट देके 5 साल पहले पीछे भेजूँ, तो आप अपने आप को कोस रहे होगे कि यार मैं कर क्या रही हूँ? Yeah, right. ठीक है, मतलब अगर यही दिमाग मेरे पास 5 साल पहले हो तो मैं बोलूँगा भाई ये इंसान के बच्चों की तरह ये काम कर लो, 10 साल बाद और अच्छे हो जाओगे। बट दिस इज़ व्हाट अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट यूजुअली डू विद योरसेल्फ, ठीक है? आपको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि आपको आगे जाके सीखना क्या है, Mhm. ठीक है? आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप बेशक कितने भी मैच्योर क्यों ना हो, ठीक है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, इट्स टीच यू हाउ टू बी ऑन टाइम, ठीक है, पंक्चुअलिटी क्या चीज़ होती है,
ठीक है? इट टीच यू के नो, माय ओवरऑल अटायर डज़ मैटर अ लॉट। मैं किस तरीके से बात करूँगी, उससे उससे पहले लोग मुझे 0.1% ही सही लेकिन जज ज़रूर करेंगे कि मैं किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रही हूँ अपने आप को, ठीक है? उसके बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, इट्स अबाउट द हेजिटेशन, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि यार आप बाहर जाके ना हमें इंग्लिश सही नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है यार, आपको आपको एमएनसी में फ़ायदा ये होता है कि कोई आपको जज नहीं कर रहा होता। क्योंकि सबके ऊपर स्ट्रेस होता है कि ठीक है यार, वी नीड टू डू समथिंग बिकॉज़ एमएनसी इज़ लाइक अगर मुझे पिक करने को मिले तो मैं कहूँगा यार आप छोटी एजेंसी में काम करो, क्योंकि वहाँ पे इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट, ठीक है? बिकॉज़ यू कांट बी व्हाट आई विल से, यू कांट बी गुड फॉर एवरीवन ना। आपकी एमएनसी के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप हर किसी को तो पसंद नहीं आ सकते, ठीक है? अगर लोग इसको पॉलिटिक्स कहते हैं तो शायद ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, सही है? और इट्स नॉट अबाउट यार, एवरीवन इज़ कमिंग, डूइंग देयर वर्क, गेटिंग मनी, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि रिदा कोई पॉलिटिक्स करने के बाद सीईओ बन जाएगी उस कंपनी की। क्योंकि आपका जो टोटल स्पैम होता है वो होता ही 3-4 साल का है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आपकी ये कंपनी से अटैचमेंट या तो आपके पर्सनल रूल्स पे होती है, या तो आप सिर्फ तब तक होती है जब तक कोई और कंपनी आपको अच्छे पैसे नहीं दे देती। नहीं दे देते। यस, बट इन द ओवरऑल टेन्योर यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। So moving towards another topic, people usually think यार, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिलेटेड टू एचआर, आपका काम ही क्या है? दिस इज द माइंडसेट पीपल यूजुअली हैव। लर्निंग एंड डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? अ, हमारे पाकिस्तान में क्या बना हुआ है कि यार आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, आपका क्या है यार, आप लोग तो घूमते रहते हो, आप ये डे करा लेते हो, आप वो डे करा लेते हो। एचआर को करना क्या है, 30th को सैलरी बाँट देनी है, 4-5 इवेंट करा लेने, ठीक है? बट देन कम्स टू अ पॉइंट, जब आप उस पॉइंट पे पहुँच जाते हो और फिर आपको समझ में आता है नो, दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट द ईज़ीएस्ट जॉब, ठीक है? बिकॉज़ एवरीवन इज़ लाइक, मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ आज से 3 साल 4 साल पहले मुझे भी ऐसे लगता है यार एचआर को करना क्या होता है? ठीक है। देन आई मेट अ फ्रेंड, ही इज़ अ वेरी गुड एचआर, फिर मुझे पता चला ओके, नाउ आई हैव टू मैनेज ओनली माय सेल्फ, ही हैज़ टू मैनेज लाइक 500 पीपल जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। क्योंकि फॉर एवरी स्मॉल गॉडडैम थिंग एवरीवन गोना ब्लेम दैट पर्सन, क्या तेरी वजह से हुआ है। नाउ टेल मी, like for example what I see that you started off as a project manager, ठीक है? Program manager. Product and program manager is a bit different field than learning and development, ठीक है? यस। इसमें 2 चीज़ों में एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, आपको दोनों में ये चीज़ें देखनी होती हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी है क्या? क्योंकि आप दोनों चीज़ों में अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे होते। एक जगह आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो यूज़र्स के लिए, और एक जगह आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो लोगों के लिए, ठीक है? तो साइकोलॉजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। So when you started as a product manager, ठीक है, project manager, why did you go with that field? ठीक है, why you switch to learning and development? Because what I see कि इसको लोग 2 तरीके से देखते हैं। मैं तो पॉजिटिव में देखता हूँ कि भाई अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, लेट्स डू समथिंग। क्योंकि अगर आपकी बात करता हूँ, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं, ठीक है? मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपका कोई एक एग्ज़ैक्ट सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम कर रहे हो। इट्स मोर लाइक अबाउट हाउ यू मैनेज थिंग्स। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही थी, व्हाई यू पिवटेड टू, क्या आपने सोचा लर्निंग एंड डेवलपमेंट करें? दैट अच्छा। वाज़ Acha Umair, as I told you, I was very clear about one thing that I want. Project management was an opportunity that came to me. I did that, but it was never the goal. The learning segment, the communication segment, training segment was always the goal because even you see, I initiated my own oratory club at ICRA when I was graduating. Like while I was graduating, I initiated an oratory club at ICRA where I was helping out people and other students, the peers, with their communication skills, with their presentation skills. How can they present themselves? How they can talk in front of people? Eliminating the factor of public speaking out of their personalities. So I was working with them, and I initiated that club. It was an auditory club, which the students used to come and you know
talk about themselves, talk about anything that they would like to share with the public in a larger public, so that their fear of public speaking can be eliminated, or could be minimized at least, or their presentation skills can be enhanced, their communication skills can be enhanced. So while I was doing my bachelor's, I was sure of one of the skills that I was sure of the fact that I have one skill, that is communication, and I was very good at it. So I started helping out my peers. Meanwhile, in my graduation days, I got this chance of doing a a product management, being an assistant to a product manager. I got that position. I was good at it. I performed it well, but it was never the goal. It was, that was more kind of technical role. It was more kind of a digital, technical, IT related role. Um, However, I accomplished that well, but the goal in mind was always there. I need to be in part of the learning and development. I have to contribute towards the trainings and everything. That's why I moved towards the program manager role, where I, initiated trainings with younger people, the younger generation. I was creating programs for them. I was creating trainings. I was organizing workshops for them. So it was always, the goal was always L&D. If you talk about the HR overall, because you just mentioned it out of the conversation, कि HR को क्या करना होता है वो, HR was never the goal. The goal was very specific. कि HR, because under HR there is recruitment, there's operations, there's learning and development, then there's performance and rewards, there performance rewards, compensations and everything. तो HR के भी बहुत सारे segments होते हैं, out of which I already knew that I wanted to go in a specific domain and in a specific function of HR, that was learning and development. So that was always the goal. And coming back to one of the facts that you mentioned here, कि HR को क्या करना होता है, HR has so many responsibilities, I tell you. इतने grievances होते हैं HR के पास पूरे दिन में, इतने grievances होते हैं कि आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते, और आप और मैं उसको शायद हैंडल भी नहीं कर सकते। जो ऑपरेशंस की हमारी टीम होती है, या हमारी रिक्रूटमेंट की टीम होती है, they're actually the superheroes of the entire department, or you can say that they're the initial face of the entire company, because जब आप किसी भी, the first person you interact to is not the CEO, right? If you give an interview in an organization, the first person you interact to is not the head of HR, it's the recruitment person. And after that, the second person that you interact to is another HR, is an operation person. So if you talk about the grievances that come our way, or if you talk about the complaints, or anything, you have any problem with your rewards, you have any problem with your compensation, आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आई, आपकी सैलरी लेट हो गई, डिले हो गई है, आपकी सैलरी कम आ गई है, आपकी सैलरी ज़्यादा आ गई है, आपका टैक्स ज़्यादा कट गया, आपका टैक्स कम कटा है, आपका इंटरव्यू टाइम पे नहीं हुआ है, आपका इंटरव्यू डिले हो गया है, आपका इंटरव्यू पहले हो गया है, इंटरव्यूअर ने शो नहीं, दीज़ मतलब ये रोज़ाना की एक कन्वर्सेशन है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में रोज़ हो रही होती है, एंड हम इस तरह की कन्वर्सेशंस को डील कर रहे होते हैं, एंड डीलिंग विद पीपल इज़ नेवर ईज़ी, इज़ नेवर Dealing with people is one of the hardest thing because वो LLM नहीं है ना कि उसको आप जो बोलोगे वो वैसे ही करेगा. It's a human. So Right. we have discussed your education. Let's move towards a good part of your life. I think so. Yeah. That is Germany. ठीक है. ठीक है, Yes. जर्मनी आ गए. जर्मनी में एडमिशन हो गया. जर्मनी में फ्लाइट लैंड हो गई. Let's discuss about the key factors जिसकी वजह से आपने बोला ओके फाइन, मैंने ये प्लान नहीं करा था, ये प्लान कर लेना चाहिए था, ये भी नहीं सोचा था, ये भी सोच लेना चाहिए था. हाँ, तो क्योंकि what are the factors that you see जर्मनी में क्या अलग होता है? अच्छा, क्योंकि आपने मेंशन किया ये फैक्ट कि फ्लाइट लैंड हो गई, तो फ्लाइट लैंड नहीं हुई थी, बड़ी मुश्किल से फ्लाइट आई थी, बिकॉज़ जिन दिनों में मुझे आना था उस टाइम पे हमारा देयर वाज़ अ टेंशन बिटवीन 2 कंट्रीज़. आई विल नॉट Like लाइक everyone knows that यस. the तो so फ्लाइट the that is the main thing. ठीक है. People usually think getting a graduation internationally as simple as taking a flight
study and come back to Pakistan. Oh, it's And I'm not gonna discuss started off कि यार ये बताएं जर्मनी कितना अच्छा है, वो सबको पता है. Let's discuss about the things कि जब आप पहुंचे और आपको पता चला ओके मैंने ये भी प्लान नहीं करा है और मैंने ये भी प्लान नहीं करा है, क्योंकि जब तक आप उस जगह नहीं पहुंचते ना आपको वो चीज़ पता नहीं चलती है. ठीक है, आपको पता चलता है ओके फाइन गूगल मैप के हिसाब से तो यार ये 1 किलोमीटर ही बता रहा था, ये 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन आई मूव. तो मैंने सोचा कि यार ठीक है लेट्स 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 कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से ना ऑफिस करीब हो. और फिर थोड़े महीनों बाद एहसास हुआ कि इतना करीब नहीं रहना चाहिए था. नहीं. ठीक है, तो let's discuss how's the overall student life in Germany. ठीक है, I know that Germany is giving good opportunities for students like free education or all sort of this thing जो grab attention grabbing होती है towards Germany. मुझे पहले ये बताइएगा did you take help of any consultants क्योंकि there is a big chunk of student who paying a lot of hefty amount to these क्या कहते हैं ना Yes. consultations. ठीक है, Yeah. and I would also wanted to discuss because I am in conversation with one of the consultant person and I was like यार आप लोग का गोल सिर्फ यही है ना कि किसी तरीके से वो बंदा वहां पहुंच जाए. हाँ, बंदे को एडमिशन मिल जाए दैट्स इट. पहुँचना उन्होंने फिर कहा बहुत उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा उसके बाद क्या करेगा वो, मतलब उसके बाद वो आपको कॉल करेगा तो आप कॉल उठाएंगे. बोले नहीं. नहीं उठा. मैंने बोला तो मैंने बोला तो मतलब ये तो वही वाली बात है, आप किसी को बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं आपको जो है सहरा तक पहुंचा दूंगा, जो गर्मी है और बाकी सारी चीजें मसले वो आप खुद देखो. तो मतलब अगर 4 फॉर्म, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव जो जिन लोगों ने, और आई एम प्रीटी मच श्योर दैट्स द वन थिंग दैट यू गोना एग्री ऑन, जो लोग खुद से जा रहे हैं ना, ठीक है, वो वहाँ के स्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं. क्योंकि आपको फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं यूएई की बात करता हूँ, जब मैं पहली बार आया और हमारा चालान कटा तो मुझे पता चला ओके फाइन आरटीए की कोई ऐप है भाई, उसमें जाके सिर्फ आपको ये भरना है और वो हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि भाई वो उसकी कॉपी लेके वहाँ जानी है, ठीक है? सो हाउ वाज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? इज़ इट ईज़ी टू अप्लाई फॉर वीज़ाज़ एंड एवरीथिंग? अ, अच्छा उमैर, आई डिड नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट वेंट फॉर एनी कंसल्टेशन या कोई कंसल्टेंट से नहीं कराया था. आई डिड माय एंटायर प्रोसेस खुद से. द प्रोसेस इटसेल्फ इज टाइम कंज्यूमिंग आई वुड से. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बट आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, आप किसी और के लिए तो नहीं एफर्ट्स डाल रहे, तो अपने लिए तो डाल ही सकते हैं एफर्ट्स आई थिंक. It takes a lot of efforts, it's time consuming, but it's worth it. Um, I was maybe मैं ये कहूँ कि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए पैसे नहीं थे. नो, इट्स नॉट दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे. इट्स लाइक एक प्रोसेस है जो कि मैं खुद समझ सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ. लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. मतलब आप खुद खुद करें ना. अगर सही आपके पास रिजेक्शंस आते हैं, आपको ऐसा लगता है यार यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ रहे हैं, अब नहीं हो सकता, तो मे बी शायद फिर आप कंसल्टेशन के लिए जाएँ. In my case, I was lucky enough to have few friends here who could guide me कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. बट नॉट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठा हुआ इंसान के पास बहुत टाइम है कि वो आने जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर निकलना है, वो उनके उनके लिए ही बैठे हुए हैं कि जी, जी ऐसा कर लो. नो, आई अंडरस्टूड द टाइम एंड आई रिस्पेक्टेड द टाइम पीपल हैड फॉर मी. बट हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है. आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है दैट इज़ फेसबुक एंड यूट्यूब. आई अप्लाइड खुद से अपनी रिसर्च पे अपने अपना टाइम और एफर्ट्स डाल के एंड देन यस आई एम हियर सिटिंग हियर. तो one of the recommendations that I would have for people who are coming here is do your process, do everything at your, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो पोर्टल्स पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो आपके अपने लैपटॉप में और अपने कंप्यूटर में होना चाहिए. अभी रिसेंटली आई वाज़ स्पीकिंग टू समबडी हियर who did his process by consultant and I asked him कि आपके पास वो वाला डॉक्यूमेंट है? He said नहीं मेरे पास वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं है. तो I was like कहाँ है आपका डॉक्यूमेंट? He said मैंने कंसल्टेंट से करवाया था अपना प्रोसेस, तो मुझे नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट किधर है. I was like नाउ अब आपको यहाँ आने के बाद जब वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आप कंसल्टेंट को फ़ोन करो, कंसल्टेंट आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, सही है? तो अपना प्रोसेस खुद करें, अपनी रिसर्च खुद करें, अपने लिए जब अपने लिए कुछ सोचा है करने के लिए, तो फिर उसमें अपने टाइम और एफर्ट्स भी खुद डालें.
ठीक है। एक और बात इससे निकलती है, you already told me that you are a person who always have a plan A and plan B, and I'm pretty much sure you have a plan B अगर जर्मनी काम नहीं करेगा, ठीक है? हाँ। So why you pick Germany for in the first place, number one? um and if not, ठीक है, what are the plus and negative points? ठीक है, क्योंकि अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इस सवाल को, क्योंकि लोगों का मसला ये होता है कि लोग ये करते हैं, हमें कनाडा जाना है, हम कनाडा ही जाएंगे। हुँ। मतलब ठीक है, आपको जाना है तो अच्छी बात है, मतलब, लेकिन अगर आपका फ्यूचर कनाडा में है ही नहीं और लिखा हुआ ही नहीं है और आपने कोई प्लान बी को करा ही नहीं है, तो वो अगर नहीं चला तो क्या करोगे? Why did you initially pick Germany, and why a lot of people are picking Germany? मैं बताती हूँ। अच्छा, since I mentioned that there was a plan A and plan B, my plan A was UK. I applied for UK. I got an admission in UK. Uh, and specifically, और जो बोर्ड जिस डिग्री में मैंने अप्लाई किया था, it was a master's in learning and development, and it was a CIPD registered degree. So it was a very big degree, something that I wanted to do. But then I had a plan B as Germany. Oh, one thing that I did not persuaded, like, went for UK was this. It was KA finances. Germany is comparatively, I'm sorry about this. No problem. This is the iPhone thing that usually happens. Perfect. Now, Okay. So, when talking about plan A and plan B, my plan A was UK. I got an admission in UK, and in one of the degrees that I wanted to pursue, I was a master's in learning and development, CIPD registered degree it was, and they were giving me the credentials for CIPD as well. CIPD is a certified is a certified body for human resources. So that happened, and then I applied simultaneously. I was applying for Germany as well. I got an admission in UK, but after my research, I found out that there are no jobs in UK, and further, I would not be able to, enable myself for the career progression as early as possible. So I did not move to UK. One factor, the career progression and recession, and other, the finances. Uh, it was double the amount that I needed for Germany. So I was like, let's just wait for my admissions in Germany maybe. And then after that opportunity, I got an opportunity in Germany. I got an admission here. Um, so Germany was plan B only because the total amount, the finances that I needed were lesser than UK. I have to do a certain block amount. That money was always going the that money is always going to come back. I know. यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि आपको आने से पहले एक ब्लॉक अमाउंट करानी होती है 1 साल की, और वो पैसे आपको हर महीने थोड़े-थोड़े करके मिलते रहते हैं। may I know कि initially, on a very layman scale, how much money it will take for an international graduate, like UK की बात की जाए, या अगर आप जर्मनी का बता देंगे तो उसका 2x UK होगा obviously, तो बट जर्मनी के लिए how much money do you need in PKR, by the way? अच्छा, अगर आप यूके की बात करें तो डिग्री द 1 ईयर डिग्री वाज़ कॉस्टिंग मी समवेयर अराउंड 77 लाख रुपीस. इट वाज़ जस्ट द फीस ऑफ द प्रोग्राम. 77 lakh rupees was the fees of the program. When I was accumulating the entire cost that I was having in Germany, तो आपका 12,000 euros जो है आपका ब्लॉक अमाउंट होता है, उसके अलावा आपके टिकट्स के हैं, आपके अकोमोडेशन है, ये सब कुछ मिला के, तो समवेयर अराउंड आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है, दैट इज़ लाइक समवेयर अबाउट 55 टू 60 लाख रुपीस, जिसमें आपका डिग्री भी वो हो रहा होता है, आपकी डिग्री भी कवर हो रही होती है, आपके बिकॉज ब्लॉक अमाउंट से पैसे वापस आ रहे होते हैं, तो अगर आपने किसी से लेट्स से लोन लिया है तो आप उनको रिटर्न बैक भी कर सकते हैं. सो तो बेसिकली अगर यूके की बात करूं तो इफ यू हैव 1 CR पीकेआर में, अभी के हिसाब से 2025 के हिसाब से, क्योंकि कुछ नहीं पता है 2026 में 1 CKR जो 2 CR हो जाए, but if you have 1 CR, you can be assuming a master's in London, in UK, with respect.
नो, नॉट लंदन, बिकॉज़ आपको एटलीस्ट, क्योंकि आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है जो कि 1 सीआर की होनी चाहिए ऑलरेडी। तो 77 रुपीज़ आपकी ट्यूशन फ़ी हो गई, उसके बाद आपको अकोमोडेशन, आपके 3-4 महीने का जो भी आपका खर्चा आप लेके आओगे वो होगा, एंड देन फिर आपकी एक बैंक स्टेटमेंट एक 1 सीआर की जो आपको दिखानी है। तो ओवरऑल आप वो 2 सीआर। हाँ, तो आपको ओवरऑल 2 सीआर चाहिए फॉर यूके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। आई नो लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते होंगे। देयर आर कंसल्टेंट्स जो कहते हैं जी हम 50 लाख में भी करा देंगे, एंड देन आई डोंट नो कि उनका क्या पूरा बट प्रोसेस दे हुँ, but I'm pretty much sure कि but I'm pretty much sure कि there is something like कि जो अमाउंट सिर्फ दिखानी होती है वो तो मेरे ख्याल से पेपर वर्क पे दिखानी होती है। आई यू डोंट हैव टू ओन इट। आई थिंक आई एम प्रीटी मच श्योर उसका कोई ना कोई लूप होल भी होगा जिस तरीके से उसको उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सही है जी, पैसे ही बता दिए। अब जर्मनी भी आ गई, जर्मनी आई क्यों है ये भी बता दिया। अब ये भी बता दें कि जब जर्मनी आ गए तो कौन-कौन से हार्ट अटैक मिले, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी लगी कि यार ये तो प्लान के हिसाब से नहीं जा रही। ठीक है? क्योंकि आई हैव अ सेम सेशन विद लैला, शी इज़ आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी लिव्स इन जर्मनी एज़ वेल। अ, वहाँ पे मैंने चीज़ें डिस्कस करी कि यार एजुकेशन वगैरह किस तरीके से है, और लैला ने बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है? बट फिर मुझे पता चला कि यार लेट्स सी कि ये तो चीज़ें सही हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि उसका एजुकेशन हमारे एजुकेशन से बहुत आगे है, सबको पता है, ठीक है? बट उसके लिए करना क्या है? ठीक है? आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही लिव्स इन यूके नाउ, ही इज़ देयर फॉर हिज़ मास्टर्स, और मुझे पता है कि वो बैचलर्स में कैसा था। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू नहीं होने वाला पास। ये यहाँ नहीं चल सकता, मतलब यहाँ जाके टीचर को ये थोड़ी बोलेगा कि सर मुझे समझ में नहीं, आप एक और बार समझा दें। सर आप एक काम करें, आप मुझे नंबर दे दें, मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लूँगा। सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ वाली, क्योंकि आप सेम जगह पे सेम से दोनों लोग उर्दू बोल सकते हैं, दोनों लोग मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा ताल्लुक अलग होता है, ठीक है? आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको पता चलता है आपके 40 बच्चों की क्लास में से आप एक वाहिद पाकिस्तानी हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट और अगर आप बहुत खुशनसीब हैं तो आपके कोई पाकिस्तानी के साथ-साथ 1 आध 2 इंडियन होंगे, वरना आधे चाइनीज़ होंगे, आधे अलग-अलग, किसी न किसी, कोई यूरोप से आया हुआ होगा, कोई कहीं से आया हुआ होगा, ठीक है? तो व्हेन यू गो द फर्स्ट डे इन योर क्लास, उसके बाद से लेके आप कौन से की पॉइंट, आई एम प्रीटी मच श्योर आपने अभी तक कोई 15-20 पॉइंटर्स होंगे आपके पास कि यार ये चीज़ें अगर मैं पहले से सॉर्ट करूँ तो और बेहतर हो सकती है। एंड इट्स नॉट इंक्लूडिंग मनी, ठीक है? ऐसा अगर मैं हाइलाइट करूँ तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये भी हो सकता है, जो कोई डिस्कस नहीं करता, कि आपका घर से आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है। ठीक है? क्योंकि आपको जाना तो है ना किसी तरीके से, आप ट्रांसपोर्ट करते हो, क्योंकि इट्स नॉट पाकिस्तान कि आपने गाड़ी स्टार्ट करी, अपने अब्बू को बोला मुझे पाकिस्तान में गाड़ी स्टार्ट करी है, कोई भी आपको छोड़ देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू सीक एट, इन चीज़ों पे लोगों को डिस्कशन करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए बिफोर द मूविंग टू जर्मनी स्पेसिफिकली। अच्छा, Umair, because I think one of the funny things that I would like to mention is the weather. So yeah, when I came, uh, when I was coming here, I asked a fellow student कि मुझे बताएं कि कैसा वेदर है और मैं किस तरह से कपड़े पैक करूँ। She was like, समर्स है, तुम समर्स के हिसाब से कपड़े पैक कर लो। अब कराची का समर्स इज वे डिफरेंट फ्रॉम जर्मनी का समर्स, सही है। यहाँ की समर्स में भी विंटर्स हैं, लिटरली अभी मेरी खिड़की के बाहर बारिश हो रही है। तो आई आई वाज़ लाइक ओके, समर्स के कपड़े रख लिए। माय head did not check the weather on Google or anywhere else. I relied on a conversation that I had with a with a lady that is similar in my program, that we share the same program. And I was like, चलो कोई बात नहीं, समझ से रख लेते हैं, कोई बात नहीं. When I landed here, it was 10 10 degree, I believe. I was very cold. And this is summers. So yeah. तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सेकंड सेकंड था कि ट्रांसपोर्ट, बिकॉज़ आप आते हो, आप नए होते हो, आपको नहीं पता एग्ज़ैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है। और वो तभी हो सकता है कि कोई आपको अकम्पनी करे एट द एयरपोर्ट, अदरवाइज़ आई वाज़ वेरी लकी इनफ दैट समबडी केम टू पिक मी फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड देन गाइडेड मी थ्रू द प्रोसेस एंड एवरीथिंग कि ट्रेन्स कैसे लेते हैं, टिकट्स कैसे लेते हैं, आपके पास टिकट होना चाहिए। वन थिंग, आप जर्मनी लैंड करने से पहले अपना ट्रेन का टिकट अपने साथ लें। अगर आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं है, आप पे आते ही, मतलब आप एयरपोर्ट से उतरे और आप पे फाइन लगेगा।
ओह! बहुत मतलब किस काफ़ी ट्रेन का भारी। टिकट? किस ट्रेन का टिकट? आप यहाँ पे डीबी ट्रेन्स चलती हैं, डॉइच ट्रेन्स चलती हैं जो कि पूरे जर्मनी में चलती हैं और उनकी बसेज़ होती हैं। इन बसेज़ का एक टिकट होता है जो आपको लेना होता है पर मंथ, और वो टिकट आपको पहले से आने से पहले आपको जो है अपने कार्ड से ऑब्वियसली वो उनकी ऐप है, उस पे आपको खरीदना होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर आपको कोई लेने आ रहा है तब भी? मतलब अगर कोई कोई पिक यस, यस। रिगार्डलेस बिकॉज़ देखो लेने आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई गाड़ी में आ रहे हैं, वो भी ट्रेन्स और बसेस बदल के, बिकॉज़ यहाँ पे हर किसी के पास गाड़ी नहीं है और स्टूडेंट्स के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जो लेने आ रहा है उसके पास अपना टिकट है, तो आप जब आ रहे हैं तो आपके पास अपना टिकट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको या तो अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपको फाइन लगेगा बहुत बुरा। और अगर आप बस में चढ़े हैं, बिकॉज़ बस पे आपको चढ़ते ही अपना टिकट स्कैन करना होता है यहाँ पे। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो बस वाला आपको बोलेगा आप बाहर जाएँ वापस, शुक्रिया आपका बहुत और स्टेशन पे टिकट वेट ले कर। नहीं आप टिकट ले नहीं सकते हो एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आई थिंक कोई प्रोसेस होता होगा, बट मैं अपना जो है टिकट लेकर आई थी। एयरपोर्ट पे आई थिंक मैंने सुना है कि यहाँ से आप एयरपोर्ट पे टिकट ले सकते हो। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप उस क्वारी से बचना चाहें कि एयरपोर्ट पे कहाँ एग्ज़ैक्टली आपको जाना है, कुछ कुछ करना है, तो आप अपना टिकट यहाँ पे पहले से ही पाकिस्तान से अपना टिकट बुक कर आएँ, ताकि ठीक है। आपको आगे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपना टिकट लेकर आई थी, बट माय टिकट वाज़ नॉट वर्किंग बिकॉज़ उसका कोई उसको कहीं से रजिस्टर करना था, कुछ था और वो मैंने नहीं किया था। तो एक मेरे साथ थोड़ा-सा मिसहैप हो गया था, एक वेदर वाला और एक टिकट वाला। तो प्लीज़ अपने टिकट पे ज़रूर वो करें कि यू मस्ट हैव टू हैव अ टिकट विद यू व्हाइल यू आर लैंडिंग इन जर्मनी। उसके बाद आपका डॉर्म, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ डोंट गो फॉर अपार्टमेंट्स। डॉर्म में अगर आपको पहले ही रूम मिल रहा है, लेट्स से आपकी अराइवल 1 महीने बाद की है, पर आपको डॉर्म अगर मिल रहा है, तो प्लीज़ टेक द डॉर्म। आपको 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा आई नो देना पड़ेगा, बट आप प्लीज़ दे दें, बिकॉज़ यहाँ पे अपार्टमेंट्स ढूँढना बहुत मुश्किल है, अकोमोडेशन ढूँढना मुश्किल होता है, काफ़ी आसान नहीं होता शहरों में अकोमोडेशंस ढूँढना, बिकॉज़ रेडिली अवेलेबल नहीं होते अपार्टमेंट्स। अब मैंने भी ऐसे ही किया था कि मेरी जो अराइवल था वो 1 महीने के बाद का था, फिर मैंने अपना डॉर्म 1 महीने पहले बुक करा दिया था, सो दैट आई वुड हैव अ स्पेस फॉर माय सेल्फ बिफोर आई लैंड इन। अ, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, बहुत सारे लोग आके यहाँ पे ढूँढते हैं, एंड आके आप कहाँ जाओगे? अगर आपके पास कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, वेयर वुड यू एग्ज़ैक्टली गो? वुड यू स्पेंड योर नाइट्स एट द एयरपोर्ट, और वुड यू स्पेंड योर नाइट एट द बस स्टेशन और द ट्रेन स्टेशंस? प्लीज़ डोंट डू दैट फॉर योरसेल्फ। बुक योर डॉर्म्स बिफोरहैंड, बिफोर कमिंग हियर। एंड द डॉर्म्स आर लाइक द प्लेस इन द यूनिवर्सिटी। यस, यस। हॉल, और जैसे आपके हॉस्टल्स होते हैं हमारे यहाँ, यहाँ पे डॉर्म्स कहते हैं, यहाँ पे And हॉस्टल्स it's like just for the conversation, it's like अगर आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक डॉर्म अलॉट हो जाता है या आपको खरीदना पड़ता है या इट्स अ पेड और समथिंग लाइक दैट? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही उनका एक डॉर्म मेंशन हुआ हुआ होता है, जहाँ पे उनका डॉर्म का एक पूरा पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आपको डॉर्म की प्लेस अप्लाई करनी होती है। अगर उनके पास स्पेस होती है तो आपको एक एक्सेप्टेंस का लेटर आता है और आपको कुछ दिन से मिलेगा डॉर्म, ये सारी चीज़ें आती है। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होती तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, एंड दिस इज़ अ वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो, And क्योंकि how like कितना पहले ही करना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी के एडमिशन अगर आप अभी की बात आप करूँ तो अगले साल के। आपका एडमिशन आते ही, आपका एडमिशन आया है अगले साल के लिए, आप अपनी डॉर्म की प्लेस पहले से अप्लाई कर दें। आपको एक्सेप्टेंस, आपको नहीं पता एग्ज़ैक्टली आपको कितने दिन में एक्सेप्टेंस आएगी या रिजेक्शन आएगा। बिकॉज़ एट द लास्ट मोमेंट अगर आपने अप्लाई किया कि अब मेरा वीज़ा हो गया है, लेट्स अप्लाई फॉर द डॉर्म, तो आपको नहीं मिलेगी जगह। Then you'll be spending your nights on the train stations and bus stations. You would not have a place, or either you'll be barging into someone else's rooms or anything. मतलब अगर आप लकी हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप उनके साथ रह रहे होंगे, अदरवाइज़ आपके पास स्पेस नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ है। अपना डॉर्म का करें, अपने टिकट का करें। अपने साथ कैश इन हैंड लेकर आएँ, बिकॉज़ आते ही आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, बिकॉज़ आते ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और उससे पहले आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, अपनी अ What's the decent amount cash that you prefer कि इतना तो यूजुअली होना चाहिए? Because this is something also happened to me when I come to UAE. I'll tell you the story, but
फॉर दैट आपको क्या लगता है कि एक डिसेंट अमाउंट कितनी? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी कन्वर्सेशन हमारी जो कन्वर्जन होती है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। समटाइम्स यू थिंक यार जो आप पाकिस्तान से पैसे ला रहे हो इतने में तो हो जाएगा, बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। तो व्हाट इज द सुटेबल अमाउंट? यार इतनी तो स्पेसिफिकली आपके पास कैश होना चाहिए एटलीस्ट जब तक आप स्टेबल सेटल ना कर लो चीज़ें। बस यहाँ पे ब्लॉक अमाउंट वाला पूरा प्रोसीजर है कि आपको ब्लॉक अमाउंट जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद आपके पास ब्लॉक अमाउंट आती है एंड दिस ऑल एंटायर प्रोसेस टेक्स अ मंथ, मतलब 15 डेज़ टू अ मंथ, जितना भी डिपेंड करता है आपकी लक पे। तो उससे पहले का आपके पास कैश होना चाहिए। दैट इज़ समवेयर अराउंड कि आप 2-3 महीने का अपना जो है यहाँ पे जो एवरेज आपका खर्चा आता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1000 यूरोज़ आप अपने पास रखें 1 महीने का खर्चा। तो 1000 फिर आप यूरोज़? या कीप 1000 यूरोज़ बिकॉज़ आपका रे इनिशियली आपको अपने आने के बाद रेंट देना है, आपको अपने यहाँ से आप ग्रोसरी करेंगे, आप अपने लिए यहाँ से चीज़ें लेंगे, मतलब आपकी किचन यूटिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। रेंट होगा आपका एंड देन आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अगर आप देकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे आके आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करना है, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो आप इतने पैसे अपने पास रखें 1 महीने के एंड देन फिर उसके हिसाब से फिर आप देखें कि बाद में ऑब्वियसली जब आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे ऑफ हो गया है, तो आपको एग्ज़ैक्टली कितने पैसे चाहिए होते हैं बिकॉज़ रेंट्स वेरी करते हैं यहाँ पे। So somewhere around, if I'm not wrong, 1 euro, 1000 euros equals to somewhere around 3,20,000 rupees in Pakistan. So as a matter of fact, you are saying that a person should have somewhere around like 5 or 6 lakh rupees in hand cash. Till then, एट लीस्ट आई वुड से कि आप हाँ, रखें, इतना तो रखें। 5 तो आप एट लीस्ट रखें अपना इनिशियली आपके साथ मैच। ये इनिशियली अमाउंट है, ये तो आपको ये तो बस वही छोटे-मोटे खर्चे होंगे, इससे तो आप मतलब ज़िंदगी यही करेंगे। आपके खर्चे हैं, ये आपके इसमें आपके बड़े खर्चे नहीं निकलेंगे, वो जब तक आपकी ब्लॉक अमाउंट रिलीज़ नहीं होती तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो छोटे-मोटे खर्चों के लिए इतना छोटे-मोटे अमाउंट रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। एनी अदर सजेशंस? अम बस अपना यहाँ आने के बाद आपको होम सिकनेस बहुत होती है। आपको घर याद आएगा, आपको रास्ते नहीं पता होंगे तो आप घर वापस जा भी नहीं सकते, तो मत सोचिएगा घर वापस जाने का। बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है तो मेक श्योर कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। अकेले सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर्ड हों। मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ आपका सारा सर्वाइवल उसके बाद अकेले ही होता है। आपने यहाँ पे आके सब कुछ खुद करना है। आपके लिए यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ कि आपको बताएगा, गाइड करेगा। अ, सम पीपल आर हाउ डू यू मैनेज इट? आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू आर समवन कि आप पहली मर्तबा पाकिस्तान से बाहर आई थी? या इससे पहले यू हैव ट्रैवल्ड? lived in UAE for 10 years but that was with family. So पहली बार ऐसा था कि मैं अकेले रह रही हूँ और जो How did you manage? What are the key factors that you think? क्योंकि फॉर एग्जांपल व्हाट आई सी इज़ कि लड़के तो फिर भी इतने अटैच नहीं होते फैमिली से। ऑल्दो के आई टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि होम सिकनेस इज नॉट इंक्लूडिंग लाइक कि मुझे अपनी अम्मा अब्बा की याद आ रही है, इट्स द ओवरऑल वे। आपको पता होता है कि आप यहाँ पे पानी रखोगे, पानी भरा हुआ मिलेगा, आप अपने छोटे भाई को बोलोगे पानी पिला देगा, आप बहन को बोलोगे खाना मिल जाएगा गर्म होके। सो ऑल दिस, सो व्हाट हाउ डू यू मैनेज इट? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई सी इज कि लड़कियां हम अटैच्ड होती हैं अपनी फैमिली से। सो एनी टिप्स लाइक ठीक है, हाँ अब तो आ गए हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है और ये कहीं न कहीं आपको पता होता है कि यार ये मुझे करना ही है। अब आप किसी को ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना क्योंकि यू आर देयर फॉर योर ओन सेल्फ। आप किसी और के लिए पढ़ने तो आए नहीं हो, अपने लिए पढ़ने आए हो। तो हाउ डू यू मैनेज इट? आई वुड से कि I would s I'm very, I'm a very people's person, so it's very easy for me to connect with people and make friends. तो try to gel in with the people here. सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं, सब आपकी तरह ही आए हुए होते हैं, सब अपने घरों को छोड़ के आए हैं, तो वो एक एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बन जाती है स्टूडेंट्स की। ट्राई गेटिंग इनटू दैट एज़ सून एज़ पॉसिबल बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस आने के बाद फ़ौरन महसूस हो रही होती है। तो वो करें अपने स्टूडेंट कम्युनिटीज़ में जाएँ, अपने इंटरनेशनल ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पे लोगों से पूछें कि अगर और कम्युनिटीज़ हैं तो दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स हियर।
और वी देसी पीपल वी कनेक्ट ओवर फूड, तो लोग एक दिन खाना अच्छा बना लें और सबको बुला लें, आपके दोस्त बन जाएँगे। दैट इज़ एट लीस्ट दिस इज़ Okay. माय फ्रूट। Then there is another phase. What's the education look like? ठीक है? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर वहाँ पे जब आप क्लास के अंदर जाते होंगे, तो आपको एक छोटा-सा तो एक स्टैम्प पैक लगता होगा एंड कि यार ठीक है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो उर्दू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वो प्रायरली इंग्लिश है या तो जर्मन है, ठीक है? सो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि क्या-क्या चीज़ें आपको चेंज लगती हैं और किस तरीके से उनको बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ दैट लाइक मैं ये नहीं कहूँगा हर कोई रिदा तुम्हारी तरह नहीं होता कि उसको हुँ, पता हो चीज़ें, ठीक है? देयर आर पीपल हू आर अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड सो अब वो उनको किस तो कौन सी ऐसी चीज़ें मुझे लगता है एजुकेशन के हिसाब से हों? क्योंकि इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान ना कि अगर आपको मैं ये करता हूँ कि जैसे व्हेनेवर आई ट्रैवल टू पाकिस्तान द थिंग्स दैट आई नीड स्पेसिफिकली छोटी-छोटी तो वो मैं ले लेता हूँ और फिर मेरी अम्मा बोलती है वहाँ से ले लो तो मैं कहता हूँ कि यू डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये चीज़ यहाँ पे कितने की और वहाँ कितने की हो सकती है। Maybe it's about a notepad. Maybe it's about your iPad. It's not maybe about it's about your laptop. A lot of people don't have a decent laptop और फिर बाद में उनको मसला हो सकता है. So education wise, what do you prefer? कि stationaries and your हाँ, आपकी इज़ अ वेरी पॉइंट उमेर, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज़ बिफोर कमिंग हियर हमारा एक एमआईएम लाइक मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट का हमारा एक फेसबुक ग्रुप है। जब आप स्टूडेंट हो जाते हो तो दे लेट यू इनटू द दैट ग्रुप। वहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड अंडरस्टैंड कि क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि यहाँ पे कंपैरेटिवली महँगी हैं, व्हेयरएज़ पाकिस्तान में आपको सस्ती मिलेंगी और आपको इनिशियली लेकर आनी चाहिए। सो आई कनेक्टेड विद पीपल हियर एंड दे टोल्ड मी कि आप अपने मेक श्योर कि आप सॉकेट्स अगर आपके पास 3, बिकॉज़ हर हर कंट्री में सॉकेट प्लेसमेंट्स अलग होती हैं। reason change होता है? हाँ, और जो है आप अपना फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप लेकर आ रहे हैं तो इनिशियली इट्स बेटर टू कैरी अ लैपटॉप विद योरसेल्फ, बिकॉज़ आते ही आप लैपटॉप तो नहीं ढूँढेंगे ना, आपको यहाँ पे सारा काम लैपटॉप पे करना है, बिकॉज़ आपकी पढ़ाई पूरी आपकी एजुकेशन पूरी डिजिटल ही है ऑलमोस्ट। तो आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, आप वो लेक्चर्स की पावर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, प्रेज़ेंटेशंस चाहिए होती हैं, सब कुछ होती है, प्रेज़ेंटेशन बनानी है, एक्सेल पे काम है, ये सब कुछ आपके लैपटॉप पे होता है। तो इट्स वेरी मच रिकमेंडेड टू ब्रिंग अ लैपटॉप विद यू। स्टेशनरी प्लीज़ लेकर आएँ। स्टेशनरी इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव हियर, तो पाकिस्तान में आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाती है कंपैरेटिवली। तो स्टेशनरी लेकर आएँ अपनी, लोगों से कनेक्ट करें। किसी ऐसे दोस्त की बात पे भरोसा ना करें जो कि आपसे दूर रहता है। लाइक आई हैव फ्रेंड्स, मेरी सिटी में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। आई हैव फ्रेंड्स इन जर्मनी, पर कोई मेरी सिटी में नहीं था। उन लोगों से कनेक्ट करें जो आपकी सिटी में हैं और आपके साथ पढ़ रहे हैं या फिर आपके प्रोग्राम में हैं एटलीस्ट। तो उन लोगों से कनेक्ट करके पूछें कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द टिप्स दैट आई वुड गिव कि आप उन लोगों से कनेक्ट करें इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल हू लिव फार अहेड देन यू। कनेक्ट विद पीपल हू आर विदिन योर प्रोग्राम सो दैट दे कैन दे कैन टेल यू बेटर, दे कैन या दे कैन एडवाइस यू बेटर कि आप क्या चीज़ें लेकर आएँ। See it. I think we have covered a lot of good things. We just make a record. The conversation is 1 hour 10 minutes. This is the biggest conversation that I have with any of my guest speakers. But I think we have covered a lot of things, Rida, and professional wise about life in Germany. And the main reason to getting all this knowledge is to get an overall idea. Because जैसा भी आपने बोला, हो सकता है कि किसी स्टेट में रहने वाले बंदे के माइंडसेट के हिसाब से वो चीज़ें अलग हों, बट यूनिवर्सिटी से जो जो आपके क्लोज़ फ्रेंड से क्लोज़ सर्कल होता है एट दैट टाइम मोमेंट वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बट आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स आई एम हैप्पी टू हैव दिस सेशन एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल slowly get a lot of knowledge from this. So thank you so much, Rida, for your time. Thank you so much, Umair. Thank you so much for having me. I believe that I might have added some value to your audience, and thank you so much.